Dear students, in the last lecture I told you, while we discuss about the refraction at spherical convex surface, we are going to discuss that in different parts only. So here it's the second part of that one. In this case, again we will be discussing about refraction at spherical convex surface, but this time the image formed is going to be virtual. There is the only difference at all. That means object is again going to be in the rarer medium, okay, but the image formed is going to be what? Virtual. So let me explain the diagram part for you first. So you can see this is my object, okay, and this is the first ray, and here comes your second ray, that is OP. OP is your second ray. ये डायग्राम ये पार्ट मार्क नहीं है, so that's why I'm creating. So ये रे देखो, आपको पता है it will move without any deviation क्योंकि ये नॉर्मली एंटर कर रहा था. Now अगर ये मीडियम नहीं होते, this should have been the path, but you know that the light is entering towards a denser medium, so it need to bend towards the normal. So here it is bending towards the normal, so this is the path, and here comes the extension. बिकॉज आगे जाकर के ये जो रे हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो एमर्जिंग रे से उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. एक्सटेंड करते वक्त कहाँ इमेज बन रहा है, देखो इधर ये कन्वर्ज हो रहा था, सो दिस इज गोइंग टू बी द इमेज. ठीक है, सो हियर दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड हियर दिस इज मीडियम नंबर 2. लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2. सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे, 1 पे. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे, R पे. सो स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, sin A अपॉन sin R, sin A अपॉन sin R इक्वल्स mu2 by mu1, mu2 अपॉन mu1. आपको पता है हम ये अज्यूम करते हैं n is close to P. Once n is close to P, sin I is going to be I by R. Sin A is going to be I and sin R is going to be R only. So I by R, here this time it's going to be mu2 by mu1. All right, so let me come to that first. Here the relation, and finally we will do the cross multiplication. So cross multiply करने के बाद I will get it like I times mu1 equal to R times mu2. Okay, now let me take a small part of the above figure and focus on triangle NOC. Triangle NOC. This is triangle NOC. NOC. So here alpha plus gamma is going to be R. NOC, right? So okay, so it's in the NOC. Okay, sorry, I'll find this one. So here alpha plus gamma, that is supposed to be what, I. So that's what it's written over here, alpha plus gamma equal to I. Now if I consider the triangle NIC, let me clear this for you first to avoid the confusion. Now if we come to the second one, that is NIC, देखिए NIC, this is a triangle. There we are going to have gamma plus beta equal to R. Gamma plus beta equal to R. हमें क्या चाहिए, I, angle of incidence I and angle of refraction R का टर्म में चाहिए था. So directly I और R का टर्म में मिल चुका है. Now what I will do is, मेरा ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना, I times mu1 equal to R times mu2, इस पे ये I और R का वैल्यू पुट करेंगे. देखो पुट किया, सो ये इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएंगे. अब आपको पता है कि क्या करने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट करना है. ठीक है,
सो अप्रोक्सीमेशन सारे के सारे वही है, ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ चुका हूं। जितनी भी जो एम है लाइक सी एम, आई एम, ओ एम, सारे के सारे क्या हो जाएगा, सी पी, आई पी और ओ पी हो जाएंगे, है ना। अब आप देखो इस डायग्राम से अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, tan अल्फा विल बिकम अल्फा, पता है ना आपको, tan बीटा will become beta and tan of gamma will become gamma. This is what going to happen. Okay, so alpha क्या है, ni upon po, it's pm actually is going to sorry om actually, that's going to become op. Similarly beta का वाली क्या हो जाएंगे, nm upon pi, I repeat this is im actually, okay, ip, गामा क्या हो जाएंगे, nm अपॉन pc हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन में अगेन इधर भी जस्ट ऐसे स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, बल्कि काफी डिटेल में इससे पहला वाला जो डेरिवेशन है उसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन ऐसे क्यों ले रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये जो इस फिगर से मैंने अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू लिखा, उस वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, ये पहले ये जो इक्वेशन था ना ऊपर हमने लिखा था, इक्वेशन को मैंने इधर कॉपी किया हुआ है, इस इक्वेशन पे अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये अल्फा आ गया, ये गामा आ गया, ये बीटा आ गया, ये देखो ये गामा आ गया, आप चेक कर सकते हैं ऊपर इसके साथ। सो अब आपको पता है एन एम कॉमन है, न्यूमरेटर में कट जाएंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर रह जाएगा, दैट विल लीव द इक्वेशन एज 1 upon PO plus 1 upon PC times mu1 equals 1 upon PI plus 1 upon PC times mu2. All right, now what next is हम PO, PC, PI ये तीनों को U, V और R का वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। साइन कन्वेंशन फॉलो करना होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं PO टुवर्ड्स लेफ्ट है इसलिए माइनस U, PC टुवर्ड्स राइट है इसलिए प्लस R, PI टुवर्ड्स लेफ्ट है दैट्स व्हाई माइनस V। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन इस वाला इक्वेशन में पुट करने के बाद यू विल गेट इट लाइक दिस। देखो PO आ गया माइनस U, PC प्लस R, PI माइनस V, PC R आ गया ना। अब आपको क्या करना है, U एंड V का टर्म को एक साइड में लाना है, R को राइट की तरफ ले जाना है। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आपको क्या करना है, म्यू आई को अंदर ले जाओ, तो न्यूमरेटर में म्यू आई आ गया, इधर mu2 अंदर आ जाएंगे, न्यूमरेटर में दोनों टर्म में mu2 आया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इस v का टर्म को इधर लेके आना है और r का टर्म को राइट की तरफ शिफ्ट करना है। आई टोल्ड यू u एंड v एक साइड में होना चाहिए और r दूसरे साइड में होना चाहिए। रीअरेंज किया, रीअरेंज करते वक्त मुझे मिला mu2 बाय v माइनस mu1 बाय u इक्वल mu2 बाय r माइनस mu1 बाय r, r कॉमन आ गया and here comes my final expression that is mu2 by v minus mu1 by u equals mu2 minus mu1 upon r, and it is exactly the same as that of refraction at spherical surface when the image formed was real 1.0, उससे बिल्कुल मैच करेंगे, you can check।